So, good morning once again, everybody. And today we are talking about expressions, idioms, phrases, vocabulary. You will know what are they, how they are made, and how to use them in your sentences. So it is good that people have come up with some idioms. Uh, Somebody just explain what is an idiom. अभी किसने कहा दो शब्दों से बनता है जो अलग अलग होता है? यस मैम। बताओ क्या होता है इडियम? शब्दों का एक समूह होता है जिसके शब्दों को जिसका एक विशेष अर्थ होता है, जिसके शब्दों को अलग अलग अर्थ नहीं समझा जा सकता है। अलग अलग मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन दोनों को साथ मिला दिया तो हाँ, क्या हो जाएगा? एक दिस इज उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे 24/7। अब 24 एक नंबर है, बाई प्रपोजिशन है और 7 वो भी नंबर है। अब 24 अलग है, बाई अलग है, 7 अलग है। अब तीनों को एक साथ मिला देंगे तो एक बन जाएगा, एक फ्रेज बन जाएगा, इडियम बन जाएगा। 24/7 का मतलब है जो चीज हमेशा होता है, ऑल द टाइम, राउंड द क्लॉक। अब राउंड द क्लॉक भी एक इडियम है। राउंड गोल, कोई चीज गोल है, द तो आर्टिकल है और क्लॉक घड़ी है। अब इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, राउंड द क्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा, समथिंग विच इज हैपनिंग राउंड द क्लॉक, समथिंग विच इज ओपन 24/7, समथिंग विच यू आर डूइंग 24/7, जो आप हर वक्त कर रहे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन में या एक्सप्रेशन में बहुत मदद करता है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड इसकी अलग इडियम्स एंड फ्रेजेस की अलग दुनिया होती है। जितनी आप बना सकें, जितनी आप लर्न कर सकें, द मोर द मेरियर। मतलब जितनी अधिक आपके वोकैबुलरी बैंक आपका अपडेटेड होना चाहिए। पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, then you will come across lots of idioms. So today we are sharing the class with some idioms which I have compiled for you. Hello, can you see the screen? Yes ma'am. I see. You can write, you can write down the idioms with their meanings and try to write sentences. Since this is a writing class, so I will never take out writing away from you. So you can write examples, your own sentences of your choice. So idiomatic expressions or idioms with meaning and example. So like you see in the picture, what do you see in the picture? Cats है ना? क्या है? Dogs and cats. Cats and dogs. Dogs and Dogs and cats. cat and कहाँ dogs लिखा है? and यस कैट है, कैट भी है, डॉग भी है और कुतिया भी है मैम। Cats and dogs है। तो cats and dogs का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं cats क्या, dogs क्या है? जब दोनों को साथ यूज करते हैं। हेलो, I will not allow this nonsense in your class. मुर्गा भी है। जब आपको कुछ बोलना होगा, you raise your hands. Follow discipline. If discipline is not in the class, nothing is in the class. Keep yourself muted, and if you want to say, only then unmute yourself. Raise your hands first if you are allowed, then talk. So if I've asked you, you could have raised your hands to ask. Hi, yes. In the picture you see cats and dogs. What does it mean? The idiom cats and dogs? Yeah. मूसलाधार बारिश। Yes. जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, when there is heavy rain, तेज बारिश, when it's pouring, when it's raining, heavy rain, then we say it's raining cats and dogs. It is raining cats and dogs.
I could not come to class because it was raining cats and dogs. The sky is overcast. Overcast का मतलब हुआ बादल घिरे हुए हैं. Sky is overcast. So you know some more expressions. Let us come down to. So the question, what are idioms? As you learn English, जब आप English पढ़ना शुरू करते हैं, you may feel confused when you see odd phrases that just does not make sense. और जब आप English पढ़ना शुरू करते हैं और idioms देखते हैं, तो कभी-कभी आप बिल्कुल confused हो जाते हैं. जैसे cats and dogs, जिनको समझ में आ रहा है, the meaning is it is raining, बहुत तेज बारिश हो रही है. लेकिन जिसको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो दे विल बी कंफ्यूज. अगर कोई कह रहा है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स और आपको ये मतलब पता नहीं है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाउ कैन इट रेन कैट्स एंड डॉग्स. बट नहीं, इट मींस दैट हेवी रेन, बहुत तेज बारिश हो रही है. So one of your friends may say it's raining cats and dogs. When you look up, you see it's raining. बारिश हो रही है, कोई जानवरों की बारिश थोड़ी हो रही है. So these things can be confusing at the beginning stages of learning English, but then you will have to learn, and it is fun when you learn vocabulary or idioms or phrases. So these words are called idioms. Literally, they may have different meanings. अलग-अलग different meaning हो सकते हैं. Cat means different, dog means different. Putting them together will make a phrase which make an idiom, which means it is raining. It is raining. So literally, they may have different meaning, but putting them together gives them a new and unique expression. There is much more than what meets the eye. मतलब कि जो दिख रहा है, cats and dogs दिख रहा है, वो मतलब वो नहीं है, मतलब कुछ और है. और मतलब क्या है? That yes, it's raining. Like raining cats and dogs. Can anybody make a sentence? It's raining cats and dogs. Yesterday it was raining cats and dogs. You write your own sentences and then recap and discuss with me later on. But please write down your own sentences. I could not come to college because it was raining cats and dogs. I hope it rains cats and dogs because the weather is really bad. Dogs. Ah, yes? Ma'am, few days raining cat dogs. Okay. A few days ago, कुछ दिन पहले, a few days ago, it was raining cats and dogs. कुछ दिन पहले तेज बारिश हो रही थी. Ma'am, these few days. Huh? A few days ago. A few days ago. मैम फिर से बोलिए तो. Hmm? फिर से बोलिए तो. रिपीट करिए ना. A few days ago, it was raining. It is raining cats and dogs in my state. That is I don't know. Yeah, a few days ago, it was raining cats and dogs. मैम ये हो सकता है टुडे इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग. Yes,
cats and dogs लगा दीजिएगा. Today it was raining cats and dogs. I could not. I had a cricket match. I had a cricket match today, but the match was washed off. Washed off. Wash अलग है, off अलग है. दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इडियम बन जाता है कि मैच नहीं हो सका बिकॉज बारिश हो रही थी. और कैसी बारिश हो रही थी? Cats and dogs, heavy rain. तो मैम जब हेवी रेन होगा तो कैट्स एंड डॉग बोल देंगे. Cats इट्स रेनिंग कैट्स एंड dog भी बोल सकते हो. ठीक है. डाउनपोर भी बोल सकते हो. हेवी डाउनपोर मतलब डाउनपोर का मतलब होता है जैसे बाल्टी भर भर के ऊपर से आ रहा है पानी. डाउनपोर. हेवी रेन. ठीक है. यस अमृत कुमार. अमृत मैम बुरे जमैया. दिन. मैम रेनी दिन क्या मतलब बुरे दिन? रेनी डे. नो, इफ इट्स अ रेनी डे, आज बारिश है, स्कूल्स बंद हो जाता था. टुडे इज अ रेनी डे तो स्कूल्स आर क्लोज्ड. नो मैम वो वर्षा रेनी का दिन. डेज का मतलब भी मैम ऐसा होता है ना, बुरे दिन ऐसा करके. हाँ, इडियट्स में आ जाता है बट Yes, लिटरली. ma'am. हाँ यस. मैंने वो बोला मैम. हाँ यस यस हो जाता है मतलब व्हेन कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है. आई थॉट यू आर आस्किंग रेनी डे मतलब इट वाज रेनी डे बिकॉज़ schools are closed. And we did not discuss the thought of the day today. And today's thought is morning shows the day. रिपीट मैम. Morning, I've written it down. Morning shows the day. The day. शो नहीं कर रहा है कुछ स्क्रीन पे मेरे. Show नहीं कर रहा. क्लॉक हो रहा है. Yes, ma'am. One more minute. अब शो करो. यस मैम. So, workshop on writing skills again. A few days ago it was raining cats and dogs. जब भी हमने आप लोगों को लिखवाया we did just. और बहुत तेज बारिश हो रही है तो heavy downpour, heavy rain, raining by buckets, बहुत तरह का expressions आता है. And today's thought, morning shows the day. मतलब दिन बता देता है, मॉर्निंग बता देता है, सुबह बता देता है कि दिन कैसा होने वाला है. मॉर्निंग दिन शोज कैसा होगा. दिन कैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा. आई फील गुड इन द मॉर्निंग. सुबह से अगर तेज बारिश हो रही है और पता चल रहा है कि आज तो कुछ होने वाला है नहीं, और जितने भी प्लान्स हैं कॉलेज जाने के वो भी नहीं हो पाएंगे, क्रिकेट मैच था वो भी नहीं हो पाएगा, शॉपिंग करने जाना था जिसको वो भी नहीं होगा. तो इफ इट्स मॉर्निंग विल टेल यू क्या आने वाला दिन कैसा होने वाला है. तो चलो हम लोग प्लान कर लेते हैं वैसे ही कि मॉर्निंग शोज द डे. आज तो कुछ हैवी रेन है तो आज तो घर में बैठेंगे और कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, खाएंगे. तो मॉर्निंग शोज द डे. Okay, so coming back to your idioms and phrases. Getting back, yeah. So it is what a heavy downpour. It is raining. Heavy rain. Raining cats and dogs. Heavy downpour. Raining by buckets. मतलब बकेट है ना, बाल्टी से ऊपर से बाल्टी से उछल के पानी आ रहा है. Raining by मैम bucket. मैम होता है ना मैम, बादल फट जाता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत तेज बारिश होता है. अच्छा, cloud burst. ब्रस्ट. Cloud burst.
Now you see this picture. इसको देखिए, कोई आपको इडियम में याद आ रहा है? Around the clock, ma'am. Time flies. Time flies. Yeah, very good, very good, very good, very good. Time flies. time and tide wait for no one. Oh, आज हाँ, ये भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। और ये इडियम में टाइम फ्लाइज मतलब समय को जैसे पंख मिल जाता है, कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ये 2021 देखिए, अब जून आ गया, बताइए, टाइम फ्लाइज। और यही है, जब आपको लगता है कि समय अच्छा चल रहा है और एवरीथिंग इज गुड, तो आपको लगता है कि समय, तब आपको लगता है समय में पंख लग गया। और जब आपका समय नहीं कट रहा होता है तो आपको लगता है कि समय तो बीत ही नहीं रहा है। बार बार आप घड़ी देखते हैं, जब आप when you're getting bored, तो सब जब समय नहीं कटता है, जैसे हेवी डाउनपोर हो रहा है घर में, हेवी बारिश हो रही है बाहर, और घर में आप दिन भर से आप घर में हैं, तो लग रहा है समय ही नहीं कट रहा है, ऐसा भी होता है। बट एक्सप्रेशन यहाँ पर देख रहे हैं विच इज टाइम फ्लाइज, जैसे समय को पंख लग जाता है। टाइम फ्लाइज sometimes time you feel time flies when you feel really good, लगता है यस, समय को इतना जल्दी कैसे बीत गया। वो अच्छी सी पार्टी चल रही है, कोई अच्छा सा क्लास चल रहा है, टाइम खत्म हो जाता है, then you feel God, 1 घंटा हो गया। क्या मैम कहीं घूमने गए और दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो घर जाने का समय होता है तो लगता है अच्छा 10 बजे घर में कह के आए थे कि 10 बजे आ जाएंगे, 10 बज भी गया, अच्छा पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला बिकॉज टाइम फ्लाइज व्हेन यू वांट टू स्पेंड टाइम, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो उस वक्त लगता है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट इज I am all yours. You write down the meaning. I am paying attention. हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, मैं कहीं नहीं देख रही हूँ, बट सिर्फ आपको सुन रही हूँ। मेरा अटेंशन सिर्फ आप ही पे है, फोकस्ड आप पे है। आप बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मैं सुन रही हूँ। So I am all yours means you are ready to listen. You're not only ready, but you are interested. आप जानने के लिए भी इच्छुक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर से पांव तक कान ही बन जाते हैं मतलब कि यू आर रिसीविंग, यू वांट टू रिसीव एवरीथिंग, जो भी कहा जा रहा है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं आप। जैसे हम लोग तो बहुत यूज करते हैं इसको, द स्टूडेंट्स वर ऑल इयर्स इन द स्पीच कॉन्टेस्ट, द स्टूडेंट्स स्पोक वेरी वेल and the judges were all ears. The audience was all ears. ध्यान से सुन रहे थे। मैम रिपीट कर, हाँ क्या? रिपीट कर दे जो बोले अभी पिछले सेंटेंस। हमने सेंटेंसेस अभी बोला है, आप ध्यान से सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स आर ऑल इयर्स, स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कोई स्पीच दे रहा, मैंने कहा था द स्टूडेंट वाज गिविंग अ स्पीच एंड द ऑडियंस वाज ऑल इयर्स। ध्यान से सुन रहे थे। राइट ऑन द मीनिंग, which means you are ready to listen, you are willing to listen, you want to listen. सुनना चाह रहे हैं आप। जैसे आप, हाँ तो बताइए ना क्या हुआ फिर, बिल्कुल एक्टिवली आप लिसन कर रहे हैं। ये कुछ इडियम्स थे जो हमने आपको बताया, और अब देयर आर सम इडियम्स जो कि होम से रिलेटेड है।
हाँ राइट तो करना ही है सिकंदर, इसलिए कि नहीं लिखोगे तो फिर कल पूछेंगे तो फिर, और पूछना क्या है तो फिर यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो राइट डाउन। आई नो यू आर ऑल इयर्स, बट यू नीड टू राइट डाउन ऑल्सो। सुन तो रहे हो, जान रहे हैं, बट राइट डाउन। नाउ देयर सम idioms related to the word home. Home. आप स्लाइड में जो भी देख रहे हैं, यू राइट डाउन द एंटायर थिंग। होम स्वीट होम। आपका अपना, हर किसी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है। जब आप कहीं बाहर से घर पहुंचते हैं तो अक्सर लोग इसको एंटर करते के साथ ही बोलते हैं, रिलीफ मिल जाता है, बहुत आराम सुकून मिलता है जब आप कहीं से भी घर वापस जाते हैं। So it is used as an expression of one's pleasure. खुश होके लोग बोलते हैं इसको, व्यक्त करते हैं अपनी खुशी जब कहीं से भी वो घर पहुंचते हैं और रिलीफ फील करते हैं। They feel good. So it is good to be home sweet home. Home sweet home. किसी भी जर्नी से वापस लौटते हैं तो ऐसा होता है मैम। हाँ लगता है ना, आपको लगता है कहीं बाहर गए, चाहे आप कहीं 5 स्टार होटल में ही कहीं ना कहीं आप वेकेशन के लिए भी गए, बट द मोमेंट आप घर पहुंचते हैं तो एक अजीब सा एक रिलीफ लगता है, चलो अब घर पहुंच गए। तो अब कहीं जैसे हमने देखा है कि कोई हॉस्पिटल में भी अगर वेंटिलेटर पर भी है तो उसको लगता है कि नहीं घर पहुंचेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो जिद करते हैं घर चलने की। क्यों? तो होम तो हर किसी का होम होम होता है ना, एंड होम इज अ प्लेस जहाँ आप कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स्ड। बाहर तो बहुत पाबंदियां हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। घर में तो आप, you at your comfort zone, and normally, oh, it's good to be home sweet home. Finally we are home sweet home. It's good to be home sweet home. I can all these expressions है ना आपका, जो आप देख रहे हैं idioms जो है, तो you can write paragraphs, home sweet home, cats and dogs, all yours. राइटिंग टॉपिक्स आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। होम अवे फ्रॉम होम, कोई ऐसी जगह जहां पर आपको घर सा सुकून मिलता हो, घर की तरह माहौल हो, यू फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगता है, कि आपको लगता है दिस इज माय सेकंड होम। मैम दोस्त के घर पे, फ्रेंड के घर। नानी लगता है कि कोई घर नहीं है मैम। मैम नानी का घर। हाँ सही बात है। होम अवे फ्रॉम होम, अ प्लेस वेयर वन इज हैप्पी। कोई ऐसी जगह होगी जरूर आपके लाइफ में जहां आपको अच्छा लगता होगा, वेर यू फील रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल। जैसे अभी किसी ने कहा कि दोस्त के घर, नानी घर। मैम बोल, हाँ बोलो। हेलो, हेलो। हम बोले कि as an old saying goes, there is no home only, there is no place only home. हाँ वो भी एक्सप्रेशन है, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, वो भी Yes, है। ma'am. वो भी आपको इस फाइल में है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, मतलब घर से अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग हर तरह की जगहों को जाते हैं और हर बाहर भी निकलते हैं, बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, और कहीं ऐसा कंफर्ट जोन हो जाता है हम लोगों का
कि दिस इज द होम अवे फ्रॉम होम। जैसे हम लोग आई बीन वर्किंग एट सिमिज, सिमिज में हम आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं, हमको लगता है कि सिमिज इज अ फैमिली। तो यहाँ पर आने के बाद लगता है कि घर ही पे हैं। और कभी तबीयत घर में कुछ थोड़ी खराबी हो जाती है, कभी लगता है कि मन नहीं लग रहा है या बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब लग रही है, तो लगता है नहीं चलते हैं फिर, और छुट्टी ले ही लेते हैं हम लोग और चले आते हैं। और यू फील गुड ओवर हियर, तो यहाँ सबके साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, और लगता है कि यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। यहाँ की हम तो हम लोगों को ऐसा ऐसा ही लगता है। सो इट इज लाइक होम अवे फ्रॉम होम। तो कोई ऐसी जगह जाइए फिर रिलैक्स्ड। अब ये वो हम लोग का वर्क प्लेस है, इमेज है, वी फील रिलैक्स्ड, वी फील कंफर्टेबल, जैसे कि अपने ओन होम में मिलता है। और जब आप रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, देन नेचुरली यू कैन वर्क बेटर, आप बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ, ये सही है कि देयर इज इडियम है कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम, बट ये भी सही है, जैसे किसी ने कहा अपने दोस्त का घर, अपने नानी का घर, अपनी मामी का घर, जहाँ पर कभी कभी लगता है कि घर से ज्यादा सुकून मिलता है। कभी घर में डांट पड़ गई, कुछ अनबन हो गई भाई बहनों से, सिबलिंग से, पेरेंट्स से, तो क्या करते हैं आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर आपको where you feel relaxed or where you feel comfortable, लेकिन फिर वापस घर भी चले आते हैं। ठीक है, तो अ प्लेस where you feel comfortable, एक जगह जहां आप रिलैक्स फील करते हैं। ढलान। So this is home away from home. हेलो। हेलो हेलो Yes, कहीं ma'am. कहीं मैम कहीं कहीं वेकेशन पे आप जाते हैं और बिल्कुल घर सा माहौल मिल जाता है, घर की तरह खाना मिल जाता है वहाँ पे। कोई रिजॉर्ट में कोई जाता है या कोई होटल में जाता है या कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल घर की तरह है, घर की तरह है, इसीलिए वो अच्छा हो जाता है। घर सा खाना मिल रहा है, तो इट इज लाइक होम अवे फ्रॉम होम। जैसे किसी कहीं हॉस्टल, हॉस्टल इज अ होम अवे फ्रॉम होम, द ओनर सेड स्माइलिंगली। और कभी होटल के आप, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप किसी हॉस्टल को आपने खोल रखा हुआ है, तो जब स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो अपने आप क्या कहेंगे, ये हॉस्टल तो इज अ होम अवे फ्रॉम होम, यहाँ आपको घर सा माहौल मिलेगा। आपने ऐड भी देखा होगा, बेस्ट फैसिलिटीज लाइक होम, घर की तरह माहौल। तो इस हॉस्टल का ओनर क्या कहता है, दिस इज हॉस्टल इज अ होम अवे फ्रॉम होम, द ओनर सेड स्माइलिंगली। तो some a place where you feel good। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, लाइक वर्किंग हियर एट सिमिज, द वर्क एथिक्स इज very good, the we are always in a comfort zone and we feel happy working here, so it is the home away from home। अभी तुम्हारी आ गई नो प्लेस लाइक होम। कभी सिचुएशन आता है तो आप बोलेंगे यस, जैसे सिचुएशन आया, यस आई सेड दिस इज अ होम अवे फ्रॉम होम, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। with my experience, with my knowledge, with my experience rather, हमने देखा है कि नो आई फील कंफर्टेबल वर्किंग ओवर हियर। ठीक है, सो इट इज लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। एंड नो प्लेस लाइक होम, ये भी उतना ही सही है, उतना ही सही ये बात ये भी है कि घर की तरह देयर इज नो प्लेस लाइक होम। द लिटिल मीनिंग इज दैट देयर इज नो अदर प्लेस, there is no other place that is the same as home. This is usually, this usually means that there is no other place as nice as home. But if you think that this place is just like home, why it is just like home? Because it is like home, that is why it is comfortable. ये क्यों है अवे फ्रॉम होम, क्यों है? इसलिए कि घर सा माहौल आपको मिल जाता है, कहीं आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, यू आर इन अ कंफर्ट जोन, दैट इज व्हाई यू फील when wherever you feel relaxed, this is your comfort zone।
So I have traveled all over, but there is no place like home. अब सेंटेंस देखिए कि मैंने हर जगह ट्रैवल किया है, हर जगह मैं हर जगह गई हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, लेकिन टेल यू द ट्रूथ, but there is no place like home, really. So it is always good to be home, sweet home. एक्सप्रेशंस है जो कि लैंग्वेज एक्सप्रेशंस पिलर्स होते हैं. जितनी कंटेंट आपकी जितना वोकैबुलरी स्ट्रांग रहेगा उतनी कंटेंट आपकी रिच होगी. homesick. What is homesick? जब आप दूर चले जाते हैं, घर से दूर हैं, कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, फिर आपको घर की याद आने लगती है, लगता है यार हो गया यार, चलो वापस घर चलते हैं. घर की याद आती है आपको. यू वांट टू बी बैक होम, यू मिस योर होम. So homesickness is a feeling of stress caused by separation from people and places that you know. मतलब जब आप घर से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनसे दूर होते एक तनाव बन जाता है, एक स्ट्रेस बन जाता है. ये दूरी, ये सेपरेशन एक तनाव बना देता है. और फिर आपको लगता है आप उन लोगों के पास वापस जाना चाहते हैं, अपने लोगों के पास वापस जाना चाहते हैं, अपना रूम, अपना घर. स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहते हैं, दे समटाइम्स दे बिकम वेरी होमसिक. घर का खाना नहीं मिल रहा है, घर की डांट माट नहीं मिल रही है, तो लगता है कहीं कुछ कमी हो गई. तो कहीं बाहर रहते हैं आप तो घर की याद आती है. दिस इज कॉल्ड आई फील होमसिक. मुझे घर की याद आ रही. चिल्ड्रन दोज हु आर इन बोर्डिंग हाउस, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग होमसिक फील करते हैं. बच्चे जो कि बाहर वर्क कर रहे हैं, होम टाउन से बाहर वर्क कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, खुश रहते हैं वो लोग. लेकिन कहीं कहीं लोग फील करते हैं दे मिस देयर पेरेंट्स, दे मिस देयर फैमिली. समटाइम्स दे बिकम होमसिक. कभी कभी होमसिक फील करते हैं. So leaving home to go to university is a very common cause for this. जो लोग पढ़ने बाहर जा रहे हैं, जो लोग काम करने बाहर जा रहे हैं. The child was homesick on leaving home to be away in the hostel. So this child, वो बच्चा था, he was homesick on leaving home to be away in the hostel. हॉस्टल जाने पर वो बच्चा होमसिक फील कर रहा था. यह भी एक बीमारी है ना मैम? यह भी एक बीमारी है. बीमारी नहीं है. घर की याद हर किसी को आती. यस मैम. बीमारी क्या? फीलिंग है. हाँ, घर की याद आती है, घर के लोग याद आते हैं, पेरेंट्स याद आते हैं. कोई बीमारी नहीं है. ये तुमने सिक देख के समझा क्या? सिक मतलब बीमार इसलिए है, फील कर रहे हैं कि घर पे नहीं है. घर जाएंगे तो खुश हो जाएंगे ना. मैम खुश नहीं रहते तो मैम तबीयत खराब हो जाता है, वो समझ के बोल रहा होगा. हाँ नहीं, तबीयत खराब ही हो जाती है, मन खराब हो जाता है. तो तबीयत ठीक रहती फिर है. कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है. हाँ, तो तबीयत बेटा खराब नहीं है, मन खराब हो जाता है कि यू वांट टू, आपको घर वापस जाना चाहते हो, पेरेंट्स से मिलना चाहते हो, बहुत दिन से देखा नहीं, जाना चाह रहे. खासकर बच्चे जो बाहर वर्क कर रहे होते हैं, छुट्टियों में घर आते हैं. So they start feeling homesick.
सॉरी, होम अलोन, एक मूवी भी है होम अलोन। Yes, ma'am. देखा है। Yes, ma'am. I don't know. कब देखा आपने? बहुत पहले। कुछ साल पहले। हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड है? हॉलीवुड। यूट्यूब पर अवेलेबल है। नहीं। मैं तो हाउस अरेस्ट देखा हूँ एक। अरे बच्चा वाला मूवी है। होम अलोन का मतलब ये होता है कि बच्चा अकेले है बिना किसी अडल्ट के। A home alone situation is one in which a child is left alone in a house without an adult. कोई बच्चा अगर अकेले घर में है तो ही इज होम अलोन, मतलब कि अकेले है वहां, उसके साथ कोई है नहीं। द बॉय वॉज होम अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बच्चा बिना किसी अडल्ट के बहुत देर तक अकेले था। और बच्चा क्या, अगर हम बोल रहे हैं, कोई हम तुमसे कोई पूछ रहा है, सो हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप और घर में कौन कौन है, तुम क्या बोलेंगे? अगर हम अकेले हैं तो बोलेंगे ना, I'm home alone. It means you're alone. I am home alone. हाउस ऑफ कार्ड्स, अब होम से हट के हाउस पे है। हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश का घर कैसा होता है? Easily destroyable. इजीली डिस्ट्रॉयड, इस पे भरोसा नहीं करना, बेकार होता है। तो ये क्या है, हाउस ऑफ कार्ड्स कैसे यूज करेंगे? इन बिजनेस वर्ल्ड भी यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं। जैसे इसका प्लान, इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब बिल्कुल वो प्लान क्लिक नहीं करने वाला है। A complicated organization or plan that is very weak, कमजोर है, जो कि बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, and can be easily destroyed, or it can easily go wrong. कोई प्रोग्राम, कोई प्लान जो कि सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, तो something which can be easily destroyed वो करना ही नहीं है कभी। So his plan was, if you have to avoid house of cards, you have to be planning in a very proper way. So house of cards मैम कार्ड क्या है? क्या मतलब? कार्ड, हाउस हाउस ऑफ कार्ड, कार्ड मतलब क्या है? ग्रैबिंग होगा। ताश, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स, कार्ड्स। कार्ड्स। अब ताश जानते हैं ना? ताश का घर कौन मैंने सा? पूछा था, ताश का घर जो बनाते हैं जो, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ताश के पत्तों का जो घर बनता है वो तो एक फूक में उड़ जाता है ना। तो कोई भी Yes, ma'am. प्लान, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है हाउस ऑफ कार्ड्स। आपका प्लान हो सकता है, आपका कोई प्रोग्राम हो सकता है। So they have built a house of cards that will collapse, मतलब उन लोगों ने हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया है जो कि खत्म हो जाने वाला, कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। Today's last idiom is make yourself at home. अपना ही घर समझिए। आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, if you receive guests, तो आप क्या कहते हैं? रिलैक्स आपका ही करिए, घर है। आपका ही घर है। यस मैम। मेक योरसेल्फ एट होम। और अगर हिंदी में बोलेंगे ठीक है, आपका ही घर है। इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम।
टेलिंग समवन टू बी कंफर्टेबल ऑन कमिंग टू योर हाउस, कोई आपके यहाँ आता है तो उसको रिलैक्स करते हैं, उसको कंफर्ट करते हैं और बोलते हैं चलो आराम करो, अपना ही घर समझो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना। सो व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ एट होम, प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम। द न्यू एम्प्लॉई, सॉरी ये फुल स्टॉप कहाँ से आ रहा है, अच्छा इसको एडिट कर देंगे, द के बाद फुल स्टॉप नहीं है। द न्यू एम्प्लॉई felt nervous, F-E-L-T, F-E-L-T. I'm going to edit this. The new employee felt nervous, so the manager said, relax, make yourself at home. F-E-L-T, felt. That was all for today, and stay back for your attendance.